Hello and welcome, my dear students. This is going to be the lecture for 10th standard for the subject of English, and the name of the textbook is Footprints Without Feet. Okay, these things I'm mentioning just because of the reason that there is no blackboard or whiteboard on my background. So probably you will not be able to understand the titles by seeing it. So that is the reason why I'm verbally making it clear to you that this lecture is going to be for 10th standard English medium for the subject of English, and once again the textbook is Footprints. Okay, Footprints Without Feet, that is the textbook, and we are dealing with an ongoing chapter. हमारा जो ongoing chapter है वो है Making of a Scientist. Chapter number 6 of this textbook, Making of a Scientist. Okay, which is an ongoing chapter, so we have discussed quite a few details so far in this chapter, in particular in the previous two lectures. This is going to be the third and the final lecture. ठीक है, और जहाँ से हम लोग रुके थे वहाँ पे पेज नंबर 36 from where you have to concentrate. Okay, so we are going to talk about the remaining part of this chapter, Making of Scientists. Okay, so obviously we will now talk about the advanced level of Richard M. Bright's achievement as being a scientist, a young scientist. Okay, so far what we have seen in this chapter is he was, as a teenager or as a schoolboy, whatsoever experiments that he was making on his own out of curiosity, we've seen about that, and in quite a few competitions like science fair at the district level, at the state level, and at the national level, he had acquired a reasonable amount of name and fame. So as he grew up, obviously that curiosity was changed into a kind of desire of being a successful scientist. Okay, वो क्यूरियोसिटी लेवल उनका जो था वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने में किस तरह से तब्दील हो गया, उसका स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको जो बताया पेज नंबर 36 से हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एंड स्पेसिफिकली वी आर ऑन टू दिस पैराग्राफ. मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा. एज अ हाई स्कूल जूनियर. हाँ, ये पैराग्राफ हमने कवर जरूर कर लिया है, बट स्टिल वहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. ओके, पेज नंबर 36 का वो पर्टिकुलर 4th या 5th पैराग्राफ है, एज अ high school junior. Okay, he continued his advanced experiment on the monarch pupa. Okay, monarch, as you know it well, as in this chapter we have already discussed that monarch is one of the species of butterflies which was seen in the Central America. Okay, and pupa is one of the stages of a butterfly's growth. Okay, so he was making an experiment on monarch pupa. That year his project won first place in international science fair, so that was a big achievement of his life, because previously he was participating in the kind of local science fair or the science fair at the school level or at the district level, but this time around his project was selected for the international science fair, and on top of everything he won the first prize also, Richard A. Bright. Okay, so this achievement gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. In this chapter we have already studied that he was invited as a kind of a volunteer to make experiments or do research for one of the laboratories of his state. Okay, so after getting this achievement of winning the first prize at the international level, he got another chance of working in the same laboratory. Okay, during the summer season. Summer में जैसे वेकेशन होता है आपको पता ही है, तो समर सीजन में उनको लेबोरेटरी में रिसर्च वर्क करने का दूसरा मौका मिला. इन ही सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. सीनियर ईयर यानी लाइक जो नेक्स्ट ईयर होता है हाई स्कूल लेवल का,
ठीक है, तो उसमें एक स्टेप और आगे बढ़े. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Okay, this is very very interesting. ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा डीप लेवल का स्टेटमेंट है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा एनालाइज करूँगा. रिसर्च के जरिए उनको ये पता चला कि बटरफ्लाई के बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड होके विंग बनते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब उनको वो जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उनके बॉडी में 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से अगर उनको सही नरिशमेंट मिलता है तभी जाके बटरफ्लाई के विंग्स जो है वो सेल्स में से डेवलप हो सकते हैं, अदरवाइज वो डेवलप नहीं हो सकते हैं. So in a way we can say that a deficiency of this hormone can result into not developing the wings at all. ठीक है, विंग्स डेवलप ही नहीं हो सकती इस हार्मोन की वजह से, इसलिए वो जो 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. That project won the first place for the zoology at the international fair. इस प्रोजेक्ट को भी पहला इनाम मिला इंटरनेशनल फेयर में. ओके, जूलॉजी डिपार्टमेंट में. एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो था जूलॉजी का, उसमें उनको पहला इनाम मिला. सो अगेन दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट. द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस इन जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture. उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि उसी लेबोरेटरी में जहाँ पे वो रिसर्च वर्क कर रहे थे, वो तो टेम्परेरी उनका असाइनमेंट था, लेकिन उसी में उनको आगे रिसर्च करने का मौका मिला. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory at the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. उसको एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट था, इसलिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ऑलरेडी रिसर्च कर ही रहे थे. प्लस उन्होंने कॉलेज लेवल पे पढ़ाई जो किया था वो यूएस की बहुत ही टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में किया था, जिसका नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा. उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो उसी लेबोरेटरी में उनका कनेक्शन जो था, कोलैबोरेशन जो था, वो जारी रहा यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी. और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, लेबोरेटरी के ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो स्पेसिफिकली ही वाज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उन्होंने हार्मोन और वो जो गोल्ड स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने और रिसर्च वर्क किया. यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. अब लेबोरेटरी में काम करने का फायदा ये होता है कि जो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है वो इजीली उनको लेबोरेटरी में से मिल सकता है आसानी से, बिकॉज लेबोरेटरी यूएस गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो चाहिए थे उनको वो सारे मिल जाते थे, और अपना खुद का क्यूरियोसिटी जो वो था वो भी सेटिस्फाई कर पाते थे, और अपना एज अ साइंटिस्ट अपना नाम भी बना पा रहे थे, रिचर्ड ब्राइट. ठीक है, तो सभी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने यूज़ किया, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया. ठीक है, और वहाँ पे रिसर्च करके he was able to identify the chemical structure of that hormone. Okay, so whatsoever available resources he had, okay, after using it, he was able to identify the chemical structure of that hormone, which is outstanding achievement again, क्योंकि इतना डीप लेवल तक कोई गया नहीं था अभी तक. आगे बढ़ते हैं. Okay, a year and a half later, that is actually the second last paragraph of page number 36. A year and a half later, during the junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life. यानी कि 1.5 साल के बाद
जूनियर ईयर के दौरान ही, यानी कि यूनिवर्सिटी की हम यहाँ पे बात करें, उनका स्कूल एजुकेशन खत्म हो गया है, ठीक है, तब उनको सेल लाइफ की एक नई थ्योरी के बारे में आइडिया आया कि वो थ्योरी वो खुद ही लिखेंगे, ऐसा उनको दिमाग में आया. इट केम while he was looking at एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन. जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो सोच रहे थे, ठीक है, उसी का एक्सरे फोटोज भी उन्होंने निकलवाया था. लेकिन एक्सरे को समझना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स वाई ही माइट हैव प्रोबेबली थॉट अबाउट राइटिंग अ रिसर्च पेपर so that by reading it in detail, even a common man can also understand. या तो फिर एक पर्पस ये भी हो सकता है कि दूसरे साइंटिस्टों के ध्यान में आ सकें, गवर्नमेंट के ध्यान में आ सकें, किसी को एक्सप्लेन करना है तो आसानी से एक्सप्लेन कर सके अगर वो पब्लिश हुआ है तो, ठीक है. तो वो पर्पस से उन्होंने रिपोर्ट या तो फिर रिसर्च पेपर लिखने के बारे में सोचा. Then the next paragraph, ठीक है. When he saw those photos, Bright didn't shout "Eureka!" जब ये एक्सरे निकलवाया, हालांकि सेल्स का एक्सरे निकलवाना यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, तो सक्सेसफुली एक्सरे पे निकलने के बाद वो बहुत ही खुश हुए मन से, अंदर से. लेकिन ऐसा ओवर एक्साइटमेंट उन्होंने अपने बिहेवियर से नहीं दिखाया. ओके, यूरेका या आई हैव गॉट इट, ऐसा कोई शाउटिंग वाउटिंग वगैरह नहीं किया. बट ही बिलीव दैट अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गिविंग द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स. ओके, वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन तो ढूंढ लिया था, लेकिन इस फोटो के जरिए उनको बायोलॉजी की एक पजल का भी जवाब मिल रहा था. फोटोज के जरिए उनको और भी जानकारी मिल रही थी. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. सेल जो है वो डीएनए को फॉलो करते हुए किस तरह से डेवलप होता है पूरा बॉडी में, ठीक है. वो थियोरी अब उनके दिमाग में क्लिक हो रही थी. क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट, अगर साइंस में आपको क्यूरियोसिटी ज्यादा है तो आपको पता ही होगा कि डीएनए, आगे लिखा भी है एक्चुअली इस टेक्स्ट बुक में, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. हमें कुछ बातें जो हैं हमारे बॉडी में वो हेरिडिटी से मिलती है. हेरिडिटी यानी जो ऑब्वियसली हमारे माता पिता होते हैं या तो उनके भी माता पिता जो होते हैं, उनकी ओर से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने बॉडी में मिलना, ठीक है, वो डीएनए से पॉसिबल होता है. सो ऑब्वियसली ओवर हियर ऑल्सो उनको ये पता चला कि ये डीएनए तो जिम्मेदार होता ही है हेरिडिटी में, लेकिन फिर सेल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से रीड कर पाता है, उसका भी रिसर्च किया जाए, ऐसा उनको ख्याल आया. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल. डीएनए से सेल का फंक्शन जो है वो पता चलता है. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. इसलिए उनको ये भी एक दिमाग में एक श्योरिटी हो गया कि डीएनए जो है वो लाइफ का, ये हर एक सजीव को लागू पड़ता है एक्चुअली, कि लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है. डीएनए से ही सब कुछ डिसाइड होता है और हर एक व्यक्ति का डीएनए जो है वो यूनिक होता है. ये चीज़ के बारे में आप आगे एडवांस में पढ़ोगे 11th-12th में, इन केस अगर आपने साइंस लिया है तो, ठीक है. आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 37 पे, फर्स्ट पैराग्राफ ना. ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it would happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो यही थ्योरी उनके दिमाग में अब आ गई थी कि डीएनए जो है वो किस तरह से काम करता है. और डीएनए जो कि एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि ऑब्वियसली विथ अ नेकेड आई वी कैन नॉट सी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका मॉडल बनाना, मॉलिक्यूल का मॉडल बनाना वो जरूरी है.
तो उसको बनाने के लिए, उसके पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए या मॉलिक्यूल का प्लास्टिक मॉडल बनाने के लिए उन्होंने पूरी रात मेहनत की अपने एक फ्रेंड जिसका नाम था जेम्स वॉन्ग, उनके साथ मिलकर। ठीक है, और साथ में मिलकर टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। किसी भी साइंटिफिक फॉर्मूला या थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मॉडल्स ड्रॉ करने होते हैं इंडिकेशंस के साथ। उसके बाद थ्योरी आपको वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो ड्राइंग करना पहले बहुत जरूरी होता है। ओनली देन द थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड टू द पीपल। तो वो ड्राइंग करना और अलॉन्ग विद दैट प्लास्टिक का मॉडल बनाना मॉलिक्यूल का, वो दोनों काम उन्होंने एक ही रात में किया। देन आफ्टर दे स्टार्टेड राइटिंग द थ्योरी। आगे का पैराग्राफ है, सरप्राइजिंग नो वन वुड नो हिम। ओके, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। इस सब्जेक्ट में उनको इतना डीप इंटरेस्ट था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सेकेंड रैंक आया। और उनके डिपार्टमेंट में जो संख्या थी स्टूडेंट्स की वो भी यहाँ पे दी गई है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। ओके, 1510, 1510 स्टूडेंट्स थे, उसमें से उनका सेकेंड रैंक आया। Abrive went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की खुद की रिसर्च की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है या डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें उनको यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो अपने ही यूनिवर्सिटी के रैंकर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली रिचर्ड एब्राइट तो रैंकर थे, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एज अ रिसर्चर रिचर्ड एब्राइट को सिलेक्ट किया। सो दैट अगेन वाज अ न्यू अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ। सो देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसके बाद if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अब ये तो एक्चुअली थ्योरी था। थ्योरी यानी बेसिकली वो होता है कि किसी भी साइंटिस्ट का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, अपना ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन फिर थ्योरी के आधार पर आगे भी रिसर्च चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है कि अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो लाइफ का जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे बात से बटरफ्लाई की नहीं हो रही है। ओके, कोई भी सजीव, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ का जो कुछ मिस्ट्रीज हैं उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। कुछ बहुत ही खतरनाक डिसीजेस से हम लोग परेशान हैं ऑलरेडी। ठीक है, और कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो इंसान के बॉडी में अचानक से पाए जाते हैं। कैंसर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया ही गया है। और ऐसा लगता है कई बार जो कैंसर वगैरह होता है या कुछ दूसरे डिसीजेस, तो उसके बारे में जान के हमें ऐसा लगता है कि इंसान का बॉडी एकदम हेल्दी था तो भी उसको कैंसर अचानक से कैसे हो गया। तो ऑब्वियसली उसके लिए सेल्स और डीएनए का थ्योरी जो है वो जिम्मेदार होता है। हम सीधा ऐसे बोल देते हैं कि कुछ कैंसर्स या डायबिटीज या तो कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी में मिलते हैं, इसलिए वो हो जाता है। लेकिन फिर भी सिर्फ इतना काफी नहीं होता है। हेरिडिटी से वो डिसीजेस होते हैं, दैट इज ट्रू, बट दैट अलोन कैन नॉट बी ओनली द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। कुछ और भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए उसको साबित करने में और उस डिसीजेस की क्योर या उसकी ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए ये रिचर्ड एब्राइट का जो स्टडी है वो बहुत ही काम में आ सकता है।
It might also lead to new ideas preventing some type of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. एब्राइट ने अपनी लाइफ में जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी दिखाया उससे ही ये चीज़ पॉसिबल है. ठीक है. एक्चुअली जो कई इंसान ऐसे होते हैं जो उसका लाइफ को हम स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ यही काम करने के लिए उसने जन्म लिया है. हम काफ़ी एग्जाम्पल ऐसा हम दे सकते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर है. उन्होंने इस दुनिया में सिर्फ सिंगिंग के लिए ही जन्म लिया ऐसा लगता है उनको देख के. बिकॉज अदर देन सिंगिंग शी हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन हर लाइफ एज फार एज द अदर अचीवमेंट्स आर कंसर्न. सचिन तेंदुलकर का बात करें तो भले ही वो पढ़ाई में वीक या एवरेज थे लेकिन बैटिंग में वो गॉड माने जाते हैं. ठीक है. सो ही वॉज बॉर्न टू प्ले क्रिकेट टू डू बैटिंग ओनली. तो ऐसा ही हम कंपैरिजन रिचर्ड एब्राइट का भी कर सकते हैं. उनका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इतना जोरदार था, ठीक है, कि उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से ही मॉलिक्यूल, सेल्स और डीएनए के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की पोजीशन में आज हम लोग हैं. ठीक है. सो आगे पढ़ते हैं हम. बटरफ्लाई के बारे में ज़्यादा दिया गया है अब यहाँ पे. His high school research into the purpose of the spots on monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. मोनार्क प्यूपा के ऊपर उन्होंने जितना भी रिसर्च किया उसकी वजह से ही सेल्स की जो लाइफ होती है उसके बारे में रिसर्च करने का उनको क्यूरियोसिटी, एक नया क्यूरियोसिटी जागा. Richard Ebrard has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. अब एक कॉमन जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि हाँ, बचपन से ही उनको बटरफ्लाई कलेक्ट करने का शौक था और इसलिए बचपन से वो साइंस में इंटरेस्टेड थे, खास करके बायोलॉजी में. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और बात में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था. वो बहुत दूसरी एक्टिविटीज करते थे. यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल. Ebrard also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person. Okay? उनको आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा पसंद थी. कैनोइंग भी करते थे वो और एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे भी उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया था. बहुत अच्छा था. डिबेट भी कर लेते थे वो, यानी बोलने में भी माहिर थे. उनके पास जो और आर्ग्यूमेंट्स होती थी सबको बताने के लिए वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होती थी. ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको बोलने का शौक था. बट वट एवर ही स्पोक इन फ्रंट ऑफ द पीपल ही ऑलवेज हैड रीजंस बिहाइंड दोज आर्ग्यूमेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बोलने की आदत होती है. they do not have a kind of substance or reason or a logic behind whatever they are speaking. लेकिन रिचर्ड एब्राइट की ये खासियत थी और ऐसे इंसान डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, डिबेट में विन भी कर सकते हैं. सो इन दैट सेंस ही वाज अ चैंपियन डिबेटर और एंड अ गुड पब्लिक स्पीकर. ठीक है. आउटडोर्स भी उनको एक्टिविटीज पसंद थी. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. फोटोग्राफी में उनको इंटरेस्ट था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. हालांकि उनका फोटोग्राफी का इंटरेस्ट जो है वो साइंस से ही कनेक्टेड था, इसलिए नेचर रिलेटेड और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के ऊपर ही वो फोटोग्राफी ज़्यादा करते थे. ठीक है. और कोई दूसरी फोटोग्राफी नहीं करते थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्टूडेंट. हाई स्कूल में वो सीधे साधे एक स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी. हाई स्कूल में एक्चुअली पढ़ाई करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी होता है. ईजी इसलिए था, एक्चुअली ईजी नहीं होता है, जनरल सेंस में देखा जाए तो ईजी नहीं कह सकते, लेकिन उनका इंटरेस्ट लेवल इतना हाई था कि उनको वो पढ़ाई ईजी लग रही थी. ओके. he turned a lot of his energy towards debating and model United Nations clubs.
एक क्लब के वो मेंबर भी थे, मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब, ठीक है, ये डिबेटिंग क्लब था एक्चुअली वो। तो एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी वो कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड वेहार। रिचर्ड वेहार जो थे वो उनके सोशल स्टडीज टीचर थे, एसएस के टीचर थे, ठीक है। वो उन्होंने उन रिचर्ड को बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत ही एनकरेज किया, जो उनके एडवाइजर भी कह सकते हैं। सो ही वाज अ सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वेहार वाज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं रिचर्ड एब्राइट कि मेरे एक आइडियल थे, वो एक परफेक्ट टीचर की तरह थे जो मुझे अच्छी एडवाइस देते थे, एनकरेज भी करते थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट से। एब्राइट खुद बता रहे हैं कि नए आइडियाज की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा एनकरेजमेंट जो है वो रिचर्ड वेहारर ने मुझे दिया था, जो कि उनके एसएस के टीचर थे, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। Richard would always give the extra effort, Mr. Weyharer said. मिस्टर वेहारर को रिचर्ड के बारे में एक चीज पता थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कि रिचर्ड जो कुछ भी करता था उसमें उसके एफर्ट्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग थे। ये बात बहुत ही ध्यान में रखने लायक है एज अ स्टूडेंट, स्पेशली फॉर यू, कि हम लोग भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, कई बार उस एक्टिविटीज में हम सफल नहीं हो पाते हैं। जब हम सफल नहीं होते हैं तब हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन कि उस एक्टिविटी में सफल होने के लिए क्या हमने सही मात्रा में एफर्ट किया था, या तो फिर अगर एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत थी तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया था। आप ध्यान में रखना ये चीज। आजकल आप आईपीएल के मैचेस देख रहे होंगे, ठीक है, तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि कोई ना कोई बॉलर है, वो विकेट के लिए कैसा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, बैट्समैन वो बाउंड्रीज लगाने के लिए कैसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, और कोई ना कोई फील्डर जो ऐसा होता है। आपने कुछ देखे होंगे ऐसे आउटस्टैंडिंग कैचेस, या तो बाउंड्री बचाने के लिए कैसा फील्डर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है कि बाउंड्री के अंदर जाके, ऑलरेडी जो बाउंड्री के अंदर चली गई है बॉल, लेकिन अभी वो हवा में है, तो अपने बॉडी को वो हवा में उछाल के वो बाउंड्री रोक लेते हैं, बॉल को जैसे तैसे करके मैदान के अंदर वो पुश कर देते हैं। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स आपने फील्डर्स की ओर से भी देखे होंगे। तो उस लेवल के आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा एफर्ट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और ये बात एक्चुअली मिस्टर वेहार, जो कि रिचर्ड एब्राइट के बहुत बड़े एडमायरर थे, उनको ये बात पता थी कि रिचर्ड जो कोई भी एक्टिविटी करता था उसमें ही वुड गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि जरूरी होता है सफलता पाने के लिए। What pleased me was, here was this person, he put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest. वो दिन में तो चलो हर कोई इंसान काम करता है, लेकिन रात में बैठ के ये जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तब 3-4 घंटे और जग के, या तो कई बार तो पूरी रात जग के वो अपने डिबेट या अपने रिसर्च के बारे में तैयारी करते थे। इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट, कि जब दूसरे इंसानों की एक्टिविटीज बंद होती है तब ये इंसान एक्टिव रहा करता था। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट, अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। And that's why he deserved a kind of encouragement or inspiration from such person as Richard Weihar. उनको पता था, इसलिए इतना encouragement और inspiration देते थे, ठीक है।
आगे उन्होंने बोला है, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। मैं वापस पढ़ रहा हूँ। वॉट प्लीज मी वॉज हियर वॉज इस पर्सन विथ पुट 3 or 4 hours at night during debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest। अपनी दूसरी जो मेन एक्टिविटीज थी वो उसको दिन में काम खत्म करते थे उसके बारे में, लेकिन रात में अगर कुछ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई डिबेट या रिसर्च उनको करना होता था तो वो इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देते थे, रात में काम करते थे। ठीक है। रिचर्ड वॉज कम्पैटिटिव, मिस्टर वहीहार कंटिन्यूड। रिचर्ड बहुत ही कम्पैटिटिव थे, यानी कि हर एक चीज में उनको आगे रहने की एक तमन्ना हुआ करती थी। आगे उन्होंने बताया है, बट नॉट इन अ बैड सेंस। किसी को हराने के हिसाब से वो कंपेटिटिव नहीं थे। उनको बस ये था कि वो सब्जेक्ट जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है उसमें आगे बढ़ना है बस। ठीक है। और दुनिया के सामने कोई नई थ्योरी लाना है। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। जीतने के लिए वो सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं होते थे, ये रिचर्ड वहीहार बता रहे हैं। ओके। प्राइज के लिए वो नहीं विनिंग करते थे कि चलो हाँ मुझे प्राइज जीतना है इसलिए मैं ऐसा करूंगा। No, it's not like that. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. जो काम कर रहे थे उसमें उनको खुद को सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट जॉब उनको करना था। इसलिए इस तरह से वो कंपेटिटिव कहे जा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से कंपेटिटिवनेस का सबसे हाईएस्ट लेवल है। For the right reasons, he wanted to be the best. यानी कि उनको जो कंपेटिटिवनेस था वो बहुत ही प्योर था और बहुत ही राइट रीजन से वो कंपेटिटिव थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। किसी भी इंसान को साइंटिस्ट बनना है तो इसमें ये इंग्रेडिएंट का होना बहुत जरूरी है। बात यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट बनने की नहीं है। इंसान चाहे कुछ भी बनना चाहे, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहे या स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहे या अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहे या इवन अच्छा पेंटर या इवन अच्छा डांसर बनना चाहे, तो उसमें दूसरों को हराने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राइसेस जीतने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। आपका स्किल जो है वो हाईएस्ट लेवल पर डेवलप हो, ऐसा एक प्योर रीजन आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद तो आपको प्राइसेस मिलने ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है फिर। बट अ काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मैंने ऐसा पढ़ा है कि कई बार आपको आपके खुद के साथ कंपटीशन करना होता है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा अच्छा एक अचीवमेंट करके दिखाया है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी एक तमन्ना होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी, यानी मेरा खुद का जो परफॉर्मेंस है उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मेरा नेक्स्ट टाइम रहना चाहिए। So you are being a competitive to yourself, you are in competition with yourself, not with others. Okay, so in that sense he was like a successful scientist। तो successful scientist बनने का ये एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। आपका दिमाग बहुत ही चुस्त होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें दूसरे कोई अनाप शनाप विचार नहीं होने चाहिए। एड क्यूरियोसिटी। उस दिमाग में फिर क्यूरियोसिटी का होना भी जरूरी है। कुछ नया जानने की एक जिज्ञासा जो होती है, क्यूरियोसिटी उसको बोलते हैं। एंड मिक्स द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। सही कारणों की वजह से आपको जीतने की तमन्ना जो है वो भी होनी चाहिए। ओके। एब्राइड हैज दीज क्वालिटीज। एब्राइड में ये सारी क्वालिटीज हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स opened the world of science to him, Richard A. Bright has never lost his scientific curiosity। इसी चैप्टर में आगे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। बचपन में उनकी मम्मी ने उनको जो ये बुक दिया था गिफ्ट में पढ़ने के लिए, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक का टाइटल था। ये पढ़ा, तब से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। और मेरे ख्याल से
उस बुक का जो रीडिंग था वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। तब तक वो जो कुछ भी करते थे वो एक क्यूरियोसिटी की वजह से करते थे, लेकिन उनका इनसाइट और डेवलप हुआ, उनका ब्रेन पावर और डेवलप हुआ, उनका क्यूरियोसिटी भी ज्यादा डेवलप हुआ ये बुक का रीडिंग करने के बाद ही। So some or the other ways, some or the other things are like responsible for being a successful person. ओके, तो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट था, वो बुक जो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपना इंटरेस्ट लेवल कभी छोड़ा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेसन चैप्टर जो है वो खत्म होता है। रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ये इस चैप्टर के राइटर थे। सो द चैप्टर गेट्स ओवर हियर। कैम्प पब्लिकेशन से आपको उसकी एक्सरसाइज लिखनी है। You may use some other resources or some other reference books as well in order to complete the exercise. उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोच कर सकते हो। ओके, 9726210903 That's what my number is, 971162 ठीक है, sorry, 9726210903. Okay, so that's all for now. Thank you very much for watching this video. Okay, have a good day. Bye bye.